Rajendra Agarwal sir, can you hear me? Yeah, I can hear. Okay, sir. All right, fine. All right. Okay. So I guess we will start. If more people are joining, they can just join. Okay. Good afternoon, everyone. Once again, thank you so much for joining discussion. So last week we had an introductory webinar, and about 90 plus people has joined the call. So this week we thought of having a follow up. This one is more like a discussion and Q&A, because last time many people also didn't happen to ask some questions, even though we had 2 hours discussion. So we have ourselves prepared certain default questions. Um, and at the same time, if any one of you are having any questions related to SG level, how you can implement it, you can feel free to ask. All right. So Rajendra Agarwal sir, you have anything to say first, or you want me to start with the questions? I can't now. Participants are there. I can see here in my computer. There is 29. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Yeah. So welcome to everyone. And, maybe some new people are there in meeting. सभी का मैं स्वागत करता हूँ। शायद इस समय हमें हिंदी में करना होगा, क्योंकि काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी में कीजिए सर। तो कैसे रहेगा दिनेश भाई? Okay, sir. All right. Fine, sir. तो कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत कुछ इंग्लिश में इंट्रैक्शन करेंगे थोड़ा बहुत। तो अभी जो सवाल आए थे मुझे, जो आपने कलेक्शन किए थे सवालों का, जो ट्विटर से आपको डीएम में आए थे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने के पहले सभी जो पार्टिसिपेंट है उनको कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि आपको ये एजी लॉजिक, जो सेफगार्ड लॉजिक है, वो ध्यान में बैठा क्या? कुछ समझ में आया उसके बारे में? हेलो दिनेश भाई, हेलो हेलो। Yes, sir. We can hear you, sir. दिनेश भाई। Yes, sir. Please go ahead, sir. Please go ahead, sir. I was on mute. Yeah. I'm asking the people that they have understand the logic of AG level logic. So any question, live question, we can take first. तो किसी का कुछ सवाल रहेगा तो पहले पूछो, तो उससे पहले चांस दिया जाएगा, पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हाय सर, किसका कुछ सवाल है अभी? यस हाय, लॉजिक तो समझ गया, बट उसको एक पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मतलब बेसिकली प्रैक्टिकली अगर कोई एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कर सके तो। एग्जांपल के साथ ये दिनेश भाई नेक्स्ट स्लाइड लो ना अपना, इसका ഇവിടെ വന്നെടുത്ത दिनेश भाई। हाँ, दिस इज द ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखो 5 मिनट का। हेलो
Yes, sir. Please go ahead, sir. You please go ahead, sir. Yes, sir. We can hear you. We can hear you. तो ये 5 मिनट का चार्ट है, इसमें देखिए पहले जो सुपर 10 का हम यूज कर रहे हैं, सुपर 10 है उसके अंदर और एक RSA का लॉजिक दिखाया गया है। तो इसके अंदर आपको जो जी लेवल और ये लेवल दिखाई नहीं देगा। तो फर्स्ट अभी आपको दिनेश भाई, Yes, sir. there is a two login. There is a Rajendra login is there. Can I share the screen? Allow me. You want me to share this? You want to share the screen, sir? Yeah. എടുത്തോ എവിടെ എവിടെ ആര്യ വെച്ച് ചെയ്തേ അത് പറ Yes, sir. ഡൽഹി അല്ല എവിടെ വെച്ച് What I feel is like someone else is also talking. Can you just mute them? Yeah, guys, whoever is talking, please mute yourself. Have you opened this ID? Rajendra Agarwal, this ID. Sir, I'm yes, sir. sending there. Sure, sir. You can now share your screen, sir. 1 minute. Yes. This is the chapter. Now look at it. पक गया लगभग एक ही जगह मतलब कई बहुत टाइम से पक गया आप जगह दिनेश भाई सबको म्यूट कर दो, ठीक रहेगा। दिनेश भाई, you have to mute all the people. Yeah, sir. I did, sir. You please go ahead, sir. Okay, You now please go ahead. this is the bank. Yeah. Sir, This is actually, the we bank still, Nifty chart in 5 minutes. cannot see. We still cannot see a screen yet, sir. Cannot see. 1 minute. Yes, sir. Yes, sir. You. Something is happening wrong, sir. Do you want me to share the charts or the Bank Nifty chart? Yeah, same chart, but I have to move that cursor by which they will clear everything. Right now, I cannot see a screen, One sir. minute. You can reshare. You can start share again, sir. Yeah. Okay, sir. Okay, we can, sir. You can see, but I can't see. 1 minute. What happened to this? I think it is minimize. Sir, it's okay, sir. You can stop sharing. I will just share. I will move the cursor. No, no. accordingly, sir. No. Sir, I have to see the screen on the computer by which I can say, because today is on mobile. So People saying that your network is showing weak, sir. So anyway, we'll go with from here. Now you can share this screen, sir. Hello. okay, sir. You can. Hello. Okay, sir. Sure, sir. Sure. Okay, you can stop sharing, sir. Sir. It is okay. Okay, sir. 1 minute, sir. 1 second. Sir, if you can switch off your video, then you can have better bandwidth.
So without this, but sir, I can't say because I have to log in with the computer only. So it's all right. No, I'm sharing now, sir. Sir. Can you see my screen? sir, if you can switch Yeah, off your you are video, then sharing, sir, it will but, save your bandwidth. Yeah, I'll do that. I'll do that now. Sir, I am sharing my screen. Can you see? yes. Now the last one here is support break, but SSG and SSG mixed and RSI not below 50. Can everyone see this? There is a yellow arrow that we use three indicators. First one was RSI, and second was super trend, and third was not open now till now. Now the RSI super trend. Look at the super trend. Super trend given the breakout. Here is a green super trend green is showing, and then there is a breakdown of super breaken, and the market came down. But RSI is not going below 40. RSI below not going 40. It is not proper breakout as per the super trend system. So we have to wait for proper crossover or RSI to go below 40. So we don't have to take any trade. Then after some time, the resistance level broken above now 5-minute chart resistance level broken, and super trend showing that bullishness. But RSI is not above 60. Here super trend is broken. RSI was not above 60, so that is sideways market. So at that both sideways market, SSG and SG level are mixed. There is no difference. Then this time, what you have to ask on the any chart or any stocks or any maybe on crypto, anything, where the RSI between 40 to 60, 40 to 60, RSI lying between 40 to 60, that time you have to ask me only levels, which candle you are looking. Which candle you are looking. If you are looking for a hourly candle, then ask me about the positional levels. If you are looking for a intraday, then use 5-minute chart. You have to ask for only for intraday level. If you are looking for a long-term investment, that is for a 3 to 6 months, or like cryptocurrency. So that time you have to ask it day candle SSG level. That time also you have to see what's the RSI between 60 to 40. That is more important. Then if you ask me the SG and SSG level, then I will provide the SG and SSG level and the logic also that what will happen in next candle. So SG and SSG level finding is not difficult, but taking decision and action is very difficult. So the first thing is that RSI, SSG and SSG level should be crossover. Means if you are bullish trade, then SSG should be above SG, and bearish trade, then SSG should be below SG level. This is our logic. Then we are using RSI. RSI should be below 40 for bearish, and for bullish should be 60, and the super trend as per trend. So it is very easy. Super trend, look here, super trend break this below some. Super trend break the support level and came down, but again went up. This time, this year, SSG and SSG was mixed. I have mentioned there. Then after super trend break to upper side, then also SSG and SSG mixed. But after that, the RSI broken 60, and the SSG and SSG difference means SSG went up very fast that time. So at that time I post regularly that between SSG and SSG. Is Sir, it clear, can I sir? tell? Sir, can I talk something? Yeah, sure, sir. Sir, I am actually joined today. I'm joined late, so that can you repeat the strategy?
No, just we have completed within 5 minutes because the 10 minutes went waste our to do this. Simple है, बहुत आसान है सर ये. 60 RSI के आगे हमें बाय करना है, 40 RSI के नीचे हमको सेल करना है. 40 और 60 के बीच में जब RSI होता है तब नो ट्रेड जोन होता है जनरली, और उस समय SG लेवल और SHG लेवल ये भी मिक्स होता है. तो हमको SG और SHG लेवल में अंतर चाहिए. SHG लेवल हमेशा SG के ऊपर होता है जब मार्केट तेजी में होता है, और जब मार्केट मंदी में होता है, बैरिश होता है, तब SHG लेवल हमेशा SG के नीचे होता है. और सुपर ट्रेंड हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के यूज करते हैं. जो सुपर ट्रेंड दिख रहा है ना सामने, हरी लाइन और लाल लाइन ऊपर की तरफ प्राइस के वहां पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के लिए लेते हैं. सबसे मेन हमारा लॉजिक है SG लेवल SHG लेवल गैप होना चाहिए और ऊपर नीचे की तरफ होना चाहिए. SG ऊपर होना चाहिए तेजी के समय और मंदी के समय SG नीचे होना चाहिए. दोस्तों शॉपिंग के लिए लोगों को परफेक्ट ट्रेड ध्यान में बैठने के लिए RSI का हम सपोर्ट लेते हैं. RSI क्या होता है, जब तेजी मार्केट चलती है तो 60 के आगे चला जाता है, और जब मंदा मार्केट होता है तो नीचे आ जाता है. धीरज भाई थोड़ा पीछे वाला दिखाना, लास्ट यस्टरडे का उधर ही, मतलब वही स्लाइड के अंदर पीछे कर लेना दिनेश. Yes, sir. Take cursor in this slide. Yesterday when support level break, yesterday same slide, go right side, same slide is right side more, sorry, left side super trend break, left side more left side. Yesterday chart. Okay, sir. Here. Yesterday chart. Yesterday, this is the today chart. Your cursor there. Okay, yesterday here. Sorry. Okay, sir. Yesterday, look at the green line of super trend. Your cursor, green line of super trend. No. Green line broken. Yeah, there. And look at the RSI. Where is the RSI? RSI is below 40. Then here is a proper breakdown. And then market came down and went up, crossing this 50 RSI just for a second. That time, here our SHG level was perfectly touched by this candle and came down that time. And here, proper crossover was done within this period, and market came down and again below 40. Look how the RSI is working and market movement, price movement. So while going down, it must have to go for 40, below 40, and full day it is crossing 60. Is it okay, sir? सर एक चीज और पूछनी थी, कौन से इंडिकेटर लगा के रखने चाहिए अपन को चार्ट पे मेनली? यही है ना, मेन तो सुपर ट्रेंड है. सुपर ट्रेंड फॉल रिकॉर्ड भी देता है बहुत सा, और RSI सबसे बड़े है. RSI का जो लॉजिक है, जब 1976 में इसको लॉन्च किया था तभी इसका 70 के ऊपर ओवरबॉट है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड ऐसा बताया गया था. वो चलता है, लेकिन कभी चलता है डे कैंडल और वीकली कैंडल पे. आज जो इंटरडे का लॉजिक निकला है और 60 मिनट का पोजीशन 5-6 दिन, तो उसके लिए अपना लॉजिक ये है कि 60 के ऊपर हमें बाय करना है, 40 के नीचे सेल करना है. और तीसरा जो इंडिकेटर है वो फिलहाल हिडन है, 60 और 40. अच्छा, 60 और 40 को ध्यान में रखना है. और इसमें RSI जो लगेगा अपना 1 और 14, यही लगाना अपन को इंडिकेटर. हाँ जी वही एक, और सुपर भी अपना 10 और 3 का लगाना है. अच्छा, इसमें आप है ना बैक चेक कर लो आप. क्रूड ऑयल पे भी कर सकते हैं इसे. 5 मिनट के आवरली चार्ट पे सेम लॉजिक के अंदर वही निफ्टी का अगर आप आवरली में देखोगे ना, तो वही लॉजिक है इसके अंदर. दिनेश भाई थोड़ा आगे लेना, इसका एक चार्ट है आगे देखो. Sorry, sir. Which chart? हेलो दिनेश भाई, नेक्स्ट स्लाइड, आफ्टर one slide I think there is a chart, or you can share the chart of from Twitter, Bharti Airtel. Guys, whoever is not talking, please mute. I'll keep on muting everyone, but you got to unmuting yourself, please. Hello.
तक किसी दूसरा सवाल है क्या? Any other person have question? Raise hand while sharing the screen. Hello. Hi, sir. हाँ जी, So, बोलिए sir, my सर. question is, the SG and SSG, is it like a moving average or something which changes, based on time? I have calculation that time is there, volume is there, and also candle, every candle as per the time frame, there is a calculation on Excel sheet. Okay. So when I calculate the SSG level in hourly chart, positional chart, that is we already keep all data in the system. Then we have to put only current hour data, and we remove 1 hour data first one. So Okay. please give me the calculation. Okay, so we calculated hourly based, right? No, this is hourly based is for positional. That is for 5 days holding. If and for intraday, we use 5-minute chart. Okay, so every 5 minutes you will calculate the SG and SSG level? Yeah, but it is not necessary at every 5 minutes, because there is a sideways market. We with the candle size, we can understand that there is nothing change in the levels. So candles, there is a change in the price more than 0.5% or 0.2. Hello? Sir, we cannot hear you. Yeah. Let me check. Rajendra sir, we cannot hear you. Hello? Hello? Yeah, now it's clear, sir. So in between it was not, the audio was not there. Now अभी सुन रहे हैं दिनेश भाई? Yes, Yes, sir, it yes, is sir, clear yes, sir. now. Please go ahead, sir. तो आपका क्या सवाल था आतिश भाई, जो इंडिकेटर के so- बारे में बोल रहे थे आप? I was asking about the SG and SSG. So I was trying to understand, how frequent we are calculating it, like hourly based or 5 minutes based, right? अभी ये चार्ट देखो, भारतीय एयरटेल का है, ये पोजिशनल चार्ट है. तो ये 1 घंटे का चार्ट है, 60 मिनट का चार्ट है. इसके अंदर देखो, जो पहले का आप देखोगे ना, तकरीबन जो सुपर ट्रेंड ब्रेक हुआ था, मिस्टर दिनेश, टेक Yes, sir. कर्सर टू द सुपर ट्रेंड below Okay, sir. that, below that. I'm there, sir. Okay. Now here the super trend is broken, yes, correct. And then first day there was no crossover at SSG level, and second day there is a crossover, and look at the RSI below RSI going to 40. And So then sorry to March- break you, sir. So when you say Yes, crossover, what crossover Yeah. we mean? I mean, the change in the super trend you mean, or it's something else? crossover means there itself written that SSG and SG. SSG means super SG level, Yeah, and SG got level. it. Mhm. Yeah. Super trend gave us the breakdown, but Mhm. that one day SSG was above the SG level, so it is a noted zone. Then on next day, first 2 candle it is mixed, and after that with RSI break on the 40 level, that time exactly the crossover happened. उस समय क्रॉसओवर हो गया है, एसजी लेवल है ना, एसजी लेवल के नीचे आ गई, और वहां पर ठीक है. हमने पुट बाय किया है. और पुट बाय Okay. करने से हमारा जनरली पुट बाय करते ना स्टॉक का, तो 4 से 5 दिन होल्ड करना है. नाउ लुक एट द यस्टरडेज लेवल. आप ये देखो, यस्टरडे क्या किया उसने, सुपर ट्रेंड ब्रेक किया है. देखो कल Okay. फ्राइडे को सुपर ट्रेंड ब्रेक किया है यार. ओके, नाउ मैंने एसजी लेवल और एसजी लेवल दिया है. एसजी लेवल ऊपर है और एसजी लेवल नीचे है. तो यहाँ पर अभी सब लोग इसको ध्यान दो. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एसजी लेवल एंड एसजी लेवल. सुपर ट्रेंड ब्रेक किया है तो मार्केट में तेजी चालू हो गई. तो जो बंदा एसजी लेवल नहीं जानता उसको यहाँ तेजी करेगा, लेकिन हमारे पास एसजी लेवल और सुपर एसजी लेवल है. तो एसजी लेवल नीचे है, अरे सॉरी, एसजी लेवल नीचे है और एसजी लेवल ऊपर है. तो ये लेवल चेंज होना जरूरी है. तो इसको कम से कम 5-6 कैंडल और लगेगा. तो 5-6 कैंडल बिकने के बाद
एसएचजी लेवल ऊपर चला जाएगा, एससी लेवल नीचे आ जाएगा और आरएसआई तब तक 60 के आगे क्रॉस हो जाएगा। देखो मैंने 60 लिखा है, आरएसआई शुड बी अबव 60। तो आरएसआई 60 के ऊपर भी चला जाएगा और ये क्रॉसओवर भी हो जाएगा और उसके बाद जो तेजी आएगा वो वापस फिर से ये 575 के करीब लेके जाएगा इसको स्टॉक को। तो ये क्लियर हो गया क्रॉसओवर क्या होता है, कैसे होता है सर? Yes, it is clear, sir. So, my next question is, like, you gave us a tweet, like, SG level is this and SSG level is this, Yeah. and say like Yes. SSG is below SG level, means market is bearish, Yeah. right? And Yeah. but we are seeing, there is a super trend change, and our RSI is going above, 60. But we haven't Yeah. got a confirmation from you saying like, crossover is done. Might be you're calculating or, or tuting, but can we, No. in that time, can we take that as S and go ahead and, be bullish on the market? Can we do that? No. Or we have to wait for Then the confirmation from? just very simple way that Mhm. suppose I'm posting that SSG is 538, for example. 538 is Yep. SSG and Uh-huh. SG is 530. SG is Uh-huh. 530 मतलब SG 530 है और SSG 531 है। इसका Okay. मतलब SSG ऊपर है, इसका Yes. मतलब ये ऑलरेडी क्रॉस ओवर हुआ है, Okay. ऑलरेडी क्रॉस ओवर हुआ है। और Mhm. पोजिशन में मैं आरएसआई में लिख रहा हूँ, जब आरएसआई 60 के ऊपर होता है ना तो Mhm. ये 100% क्रॉस ओवर होना ही पड़ता है इसको। अगर आरएसआई 60 के ऊपर नहीं गया ना तो ये Uh-huh. क्रॉस होता ही नहीं कभी भी। और दूसरा एक लॉजिक क्या है कि आपका जो आरएसआई है ना एक कैंडल चेंज कर सकती है, आरएसआई एक कैंडल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो लॉजिक है ना क्रॉस ओवर का उसको कम से कम 5-6 कैंडल चलते लगते हैं। तो आरएसआई भी हमको गलत मैसेज दे सकता है, सुपर टेन भी हमें गलत मैसेज दे सकता है, लेकिन एसजी लेवल और एसएसजी लेवल एक गलत मैसेज कभी भी नहीं देते। तो Okay. इसमें अभी हाँ, जैसे अभी मैं ट्वीट करता हूँ तो वहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल देता हूँ और सपोर्ट लेवल देता हूँ। व्हेन सपोर्ट लेवल इज देयर मार्केट तेजी का होता है, जब रेजिस्टेंस लेवल देता हूँ तब मंदी का होता है। जस्ट आपको क्या देखना है कि वहाँ पर गैप कितना है, एसजी और एससीजी में गैप कितना है। इंट्राडे है तो 0.5% का गैप चलता है उसके अंदर, या 2-3 पॉइंट का भी गैप चलता है, गैप होना चाहिए उसके अंदर। और जब मैं लिखता हूँ बोथ आर सेम, देन वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट लेवल और एनीवन कैन आस्क अबाउट द एसजी लेवल। Okay. So we have to wait for, there should be enough gap for trading, right? Yeah. Difference means the SG level and SCG level should have some point gap, मतलब उसका गैप होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल सभी को मैं एक एग्जांपल बताता हूँ सिंपल। एक नदी होती है ना, नदी के धारा होते हैं, जो किनारे होते हैं, किनारे अगर एक साथ मिल गए तो नदी रुक जाती है। तो उसके किनारे दोनों अलग होने चाहिए, जैसे अलग अलग ज्यादा होते जाएंगे तो उसका नदी का फ्लो बढ़ते जाएगा। तो जैसे एसजी लेवल एससीजी लेवल अलग अलग होते जाते हैं ना, दूर होते जाते हैं, तो उसका स्पीड और बढ़ता है मार्केट का, गिरने का या बढ़ने का। अच्छा सर, हेलो सर, एक निवेदन मेरा ये था कि एक शॉर्टकट में अपन अगर समझना चाहें तो एसजी लेवल अपन को ये है कि सेफ गार्ड लेवल है। अपन को यहाँ तक अपन को कोई कॉल बाय नहीं करनी है, अपन को यहाँ तक मतलब ये सेफ गार्ड है, मतलब पुट बाय नहीं करनी है। और एसएसजी लेवल जब भी आएगा तो ये जो है अपना पुट का इंडिकेशन दे देता है, यही कहना है अपना को, ये मतलब ये समझेंगे ना आपको हाँ नहीं, कॉल और पुट को थोड़ा बाजू में रख दीजिए। हमें क्या करना है, तेजी है क्या मंदी है समझना है जी। हेलो हाँ सर, हमको मार्केट में इंट्राडे या पोजिशनल तेजी है क्या मंदी है समझना है, फिर बाद में कॉल पुट का देखते हैं। तो पहले क्या था कि एसएसजी लेवल ऊपर होना चाहिए एसजी के, तो मार्केट तेजी में जी। अभी उसको सपोर्टिंग के लिए हमने क्या लिया है, आरएसआई लिया है। आरएसआई अगर 7 के ऊपर है, एसएसजी ऊपर है, एसजी नीचे, दोनों में डिफरेंस है, देन वी हैव मतलब मार्केट में तेजी है, मार्केट इज बुलिश। दिस इज वेरी क्लियर सिग्नल। देन आप डिसाइड करना है आपको फ्यूचर बाय करना है, कॉल बाय करना है, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। अभी उसके उल्टा लीजिए, मार्केट में एसजी लेवल के नीचे एसएसजी लेवल है और आरएसआई 45 है, तो हमको वेट करना है कि अभी तक आरएसआई में उतनी ताकत नहीं मिली कि मार्केट में ज्यादा मंदी आ सके।
फिर बाद में क्या जी। होता है, नेक्स्ट कैंडल अपना नेक्स्ट कैंडल हमें RSI 31 देती है, 39 देती है या 39.50 देती है, तो उस समय हमको ध्यान में आ जाता है कि मार्केट में मंदी गहरेगी, तो उस समय हमें शॉर्ट करना है या पुट बाय करना है। अच्छा। सिंपल है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या है, देखो स्टॉप लॉस की बात करता हूँ मैं, कि अगर हमने पुट बाय किया अभी या शॉर्ट किया है और उसी के बाद 10 मिनट में 15 मिनट में या इंट्राडे का जो ट्रेड है, तो एसजी लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो हमको एग्जिट होना है। मान लो अच्छा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 530 का 538 इज एजी लेवल, 538 and now SSG is 535, 3 पॉइंट का गैप है इसके अंदर। इंट्राडे हमने ट्रेड किया है, हमने 35 पे शॉर्ट किया है, उसका 32 रेट हो गया, 30 हो गया, फिर बाद में वापस कुछ जंप आया, 35 हो गया, फिर 38 क्रॉस होके अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो हमको वहां एग्जिट होना है। अच्छा। हाँ, तो उसमें आप है ना कैंडल फ्रिक्वेंटली को पूछ 5 सकते हैं। मिनट की चार्ट पे है। इंट्राडे के लिए 5 मिनट है सर, और पोजिशनल जो होता है हमारा स्टॉक के लिए, हम कॉल पुट लेते हैं 5 दिन के लिए कैरी करने के लिए, तो उसमें हम आवरली चार्ट यूज करते हैं। ओके। तो जब मैं बोलता हूँ ना, मार्केट ट्रीट करता हूँ, वी हैव टू वेट फॉर 7 मिनट, तो 7 मिनट का मतलब क्या होता है कि उस लेवल पे जाके कैंडल बंद होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मैं कैंडल के आखिर के 2 मिनट में मार्केट ऊपर चला जाता है फिर नीचे आ जाता है, या कभी कभी कैंडल के स्टार्टिंग में ऊपर चला जाता है नीचे आ जाता है, तो कैंडल प्रॉपर क्लोज नहीं होती। तो पब्लिक को ध्यान में नहीं बैठता कि ये क्या हो रहा है, कैसे कैंडल कैसे समझेंगे हम बंद हुआ। तो फिर इसके लिए मैं लिखता हूँ 7 मिनट। फिर कितने बार आपने देखा होगा कि परफेक्ट उस लेवल पे जाता है, लेकिन 7 मिनट 2 या 3 मिनट में मार्केट वापस नीचे या ऊपर आ जाता है। तो इजी लेवल अपना स्टॉप लॉस का लेवल है। अगर आपने तेजी किया, लॉन्ग किया है, वही एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल रिलायंस है 2020 का रेट चल रहा है अभी, और उसका एजी लेवल है 2020। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए सर। So you can see रिलायंस Reliance का निकल movement. आगे में, या अभी देखो रिलायंस का जो सेटअप है इसके अंदर देखिए, उसका सुपर ट्रेंड आप दिखा रहा है आपको। पोजिशनल एजी लेवल 1988.37 है और एसएसजी 96.81 है। सो दिस इज वेरी क्लियर ब्रेकआउट। एंड आरएसआई देखो नीचे 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये 2 बार 60 के ऊपर गया, तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है इसका। तो ये ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है, फ्यूचर बाय करो या कॉल बाय करो। तो हमारा तेजी का ध्यान, और जो टारगेट वगैरह भी मैंने ट्वीट किया, लेकिन अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या है हमारा, ये स्टॉप लॉस क्या है, पोजिशनल एजी लेवल 1988.37 है। तो पोजिशनल ट्रेड होने की वजह से इसके नीचे अगर आवरली कैंडल क्लोज होती है तो हमको एग्जिट होना है। तो अभी आप सोचिए, ये आए ध्यान में सबके। सर हेलो हाँ जी, सर, एक्सक्यूज मी, आप अबाउट हाँ जी, 60 RSI इज तेजी, बराबर? हाँ सर, हाँ करेक्ट। हाँ, एंड बिलो 40 RSI इज मंदी. मंदी, पण त्यासाठी एसएसजी आणि एसएसजी लेवलचं क्रॉसओव्हर पाहिजे. कारण बघा, तुम्ही हो रिलायन्सचा हो हा हो. चार्ट आहे ना, याच्यामध्ये पहिल्या दिवशीच चार्ट आहे ना, त्याच्यामध्ये आरएसआय हाँ, जोरात वरती गेलेला आहे, आणि त्याने हो हो, अबाउट 60 है, RSI अबाउट 60 है रिलायन्सचा. हा, पण त्यावेळेस त्याने क्रॉसओव्हर झाला नव्हता त्या दिवशी. 3 दिवसापूर्वी ना ओके, क्रॉसओव्हर नव्हता तिथे. हा, तर त्यामुळे बरोबर कसं आपल्याला ना, हमें क्रॉसओव्हर होना जरूरी है. बरोबर. क्रॉसओव्हर होना जरूरी है एसएसजी लेवल का. एक कैंडल है ना, देखो एक कैंडल है ना सुपर ट्रेंड यस चेंज कर यस यस. सकती है, एक कैंडल आपका आरएसआई चेंज कर सकती है, लेकिन एक कैंडल एसएसजी और एसजी लेवल कभी नहीं चेंज कर सकते. तो इसके ओके लिए ओके ओके ये प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ काम होता है इसका. तो ये ओके देखिए दिनेश भाई ने ओके. प्रॉपर दिखाया उसका, पहले जो ब्रेकआउट मिला था उस समय आरएसआई क्या था, उसका कैसे मूवमेंट आया, हाँ, फिर बाद में वापस साइडवेज मार्केट चला गया, और फिर बाद में वापस एक जंप लिया, लेकिन दैट टाइम आरएसआई इज नॉट सपोर्टिंग. ओके. ये एसी लेवल ऑफ ना कमिंग डाउन, और वो नीचे आने के बाद वापस अभी बड़ा ब्रेकआउट है इसका, बहुत बड़ा यस ब्रेकआउट है यस इसमें. यस देखो यस 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 90 जो प्राइस का जो यस. एक्शन है और जो स्टॉप लॉस है, इसमें सिर्फ 10 रुपए का डिफरेंस है. मीन्स इट इज ओनली 0.5%. और हम यस कॉल बाय करते एग्जैक्टली. हैं, इसके अंदर स्टॉप लॉस होता है, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है इसके अंदर. यस 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 यस. तो वी कैन सी. यस यस. क्लियर क्लियर. थैंक यू सर. अभी किसको पूछना है कुछ और?
RSI का जो सर इंडिकेशन अपन को रखना है 1 और 14 का रखना है। हाँ, 1 एक ही सात 14 जो चौदह डिफॉल्ट है वही रखना है। हाँ जी, हाँ जी, 1 अच्छा बाई 14 रखो, डिफॉल्ट। 1 7 का कुछ नहीं इसके अंदर। अच्छा अभी जो इंट्राडे के लिए। मैं रखता हूँ ना, एक हाँ, इंट्राडे पोजिशनल कोई भी ट्रेड हो। अच्छा सर एक आप नेक्स्ट। हाँ सर, जो पोजिशनल मतलब ये कौन सी इंटरवल है सर? आर्ली है, डेली है? आवरली। आर्ली पोजिशनल मतलब आर्ली एंड डेली। डेली का तो आप डेफिनेटली आप देते हो देखते तो नहीं, देखते नहीं। देखते नहीं है। सो वी वी नहीं विल नहीं, लुक डेली ओनली फॉर। हाँ अपने जो ट्रेड होते हैं सिर्फ इंट्राडे के होते हैं और पोजिशनल होते हैं 5-6 दिन के लिए। अभी हम अगर ओके प्रिडिक्शन करने लगे 1 महीने बाद क्या, हम अगर बोलने लगे 1 महीने बाद क्या होने वाला है, तो उसको हमको जरूरत नहीं है, वी आर ए ट्रेडर। तो हाँ ट्रेडर हाँ को क्या होता है, माल लेना है बेचना है, माल लेना है बेचना है, माल लेना है बेचना है। सही तो सही हमको इंट्राडे का बिजनेस एक अलग है। जैसे सब्जी वाले होते हैं ना, सब्जी वाले क्या करते हैं, सुबह माल लेते हैं शाम को बेच देते हैं, दैट इज इंट्राडे। सही और जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं, माल लाते हैं 2 दिन में 4 दिन में बेच के खत्म कर देते हैं। सही। तो हमको ये ट्रेडर का एक लॉजिक जो बनाया ना, ये अपना सिर्फ हफ्ते के अंदर हमने जो भी करना है हफ्ते के अंदर मौका कहाँ होना चाहिए, तो खाली हो हाँ जाना हाँ चाहिए, प्रॉफिट और लॉस वॉट। हाँ हाँ ओके। तो पोजिशनल एंड 5 मिनट्स, वो पोजिशनल मतलब आर्ली एंड 5 मिनट्स जो इंट्राडे के लिए यूज यस, करते हैं। पोजिशनल हम यूज करते हैं जो फॉर 3-4 दिन के लिए तो यूज करते हैं, फोर टू है ना फाइव सर? 4 4 to 5 days, to 5 5 days मैक्सिमम। बिकॉज हाँ। अगर मैं कोई कॉल लेता हूँ या पुट लेता हूँ, तो 5 दिन हम्म के आगे अगर मैं होल्ड करता हूँ, तो हम्म, उसका जो हम्म, प्राइस प्रीमियम है ना वो कम होते जाता ठीक है। है। हाँ 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 सही में। और ओ, इसमें जो भी ऑपरेटर है ना, जो भी मार्केट चलाता है, वो भी हाँ हाँ ट्रेडर है। वो क्या करता है, उसका प्रॉफिट भी बांध लेता है ना, वो उसको 5 दिन का मूवमेंट हो गया तो वो भी एग्जिट होने की कोशिश करता है। ठीक है। एंड सर ये जो पोजिशनल आर्ली जो एसजी एंड एसएसजी लेवल बताया, वो कितने देर हाँ जी, तक वैलिड है? आई मीन जो हमने सपोज पिवट पॉइंट प्लॉट किया चार्ट में, सो पिवट विल लाइक हाँ जी, पिवट का वैल्यू तो एक ही रहते हैं पूरे दिन के लिए, है ना? डेली में प्लॉट कर हाँ लिया जी, तो करेक्ट एक ही करेक्ट रहते हैं, करेक्ट वीकली कर लिया तो उस करेक्ट। पूरे पूरे वीक के लिए एक ही है। तो सिमिलर टू दैट हाँ एसजी जी, एंड एसएसजी लेवल, हाउ लॉन्ग इट इज वैलिड? सपोज मैंने पोजिशनल लिया या 5 मिनट्स चार्ट में आपने जो वैल्यूज दिया, how long it will be valid, those levels? इट इज वैलिड एज पर द कैंडल। Uh-huh. एज पर द कैंडल मीन्स आप इंट्राडे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपने 5 मिनट का एसएसजी लेवल लिया ना, तो हर हाँ 5 मिनट में वो बदले होते रहते हैं, चेंज होता रहता है। रिगार्ड ठीक अगर है बड़ा मूव आने आया तो दैट विल बी सेम, अगर बड़ा मूवमेंट आया कुछ तो फिर बाद में वो रैपिडली चेंज होता है। इसलिए मैं बार बार अगेन एंड अगेन ट्वीट करता हूँ जब भी मेरे को लगा कि इसका ट्वीट करना जरूरी है, फर्स्ट थिंग। और जब ओके। आवरली चार्ट देखते हो आप, पोजिशनल चार्ट देखते हाँ हो, तो वो 1 घंटा खत्म होने के बाद बंद होता है, चेंज होता है। लेकिन वो कब चेंज होता है, कि जब आपका पहले वाला कैंडल के ऊपर या नीचे क्लोज दिया तो ही चेंज होता है। अगर उसके अंदर ही बंद हुआ तो नथिंग चेंज। ओके। जैसे हाँ, जैसे भी आप देखो ये रिलायंस का चार्ट है सामने, तो हाँ आखिरी हाँ का कैंडल है ना, वो पहले कैंडल के अंदर ही बंद हुआ है तो वो सेम रहेगा। लेकिन उसके पहले वाले दिन आप देखोगे ना, पहला कैंडल एकदम ग्रीन है, उसके बाद रेड कैंडल छोटे छोटे कैंडल आ गए। तो यहाँ हाँ हाँ पर है ना, एसजी लेवल उतना ही रहेगा, लेकिन एसएसजी लेवल नीचे आ जाएगा इधर। नीचे आ जाएगा, एसएसजी ठीक है। लेवल क्या बोलता है, हाँ, एसएसजी लेवल क्या करता है कि करंट मूवमेंट देता है अपने को, सुपर लेवल है वो। और सुपर हम्म क्या बोलते हैं, सेफगार्ड है वो। और जो हम्म सेफगार्ड है, नॉर्मल सेफगार्ड है, वो नीचे रहेगा। लेकिन जो ऊपर से नीचे आएगा ना एसएसजी लेवल, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, दोनों में गैप कम हो जाएगा। Okay, और यहाँ sorry, से ये जो sorry, कैंडल है sir, आज sorry, का sir. पहले, Actually, now it will be disconnected. Please all rejoin again using the same password and ID. yeah, and ओके then I will take the questions Yeah. from the Twitter. ओके। Okay, thank you. Okay. Guys, I also saw some question asking
All right, guys, whoever has joined, please mute yourself and you can disconnect your video also. Can I ask a question? Sorry, who's this? Sushil. Yeah, Sushil, please go ahead. Okay, in the recent tweet abhi intraday wala bank nifty wala bank nifty future close at 34,850. Oh, sorry. Okay, SSG is 34,650, SG is 34,500. So this shows that this is a bullish trend. But अभी 850 पे क्लोज हुआ है. Does that mean कि वो अभी वो 650 या 500 पे आ जाएगा या 850 से और ऊपर ही जाने वाला है? Sorry, bro. Actually, me, I understand only English. I'm not sure whether if sir has heard that. Okay, I will one minute. Today's tweet we are talking about the positional level. About the intraday level. Today's tweet, yeah, 3 hours ago. You tweeted that the future that closed on Friday, Bank Nifty was 34,850. SSG is 34,650 and SG is 34,500. That clearly indicates that it's a bullish trend, right? But Yes. the closure is already at 34,850. So do you think that you know Bank Nifty is going to come down to 34,650 or something like that, or what is it? वेरी नाइस क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका कि 34,850 प्राइस क्लोज हुआ है और एसजी Sorry, sir, we lost you. Couldn't hear you. हेलो दिनेश भाई. Yeah. Now we can, sir. Please go ahead, sir. 34,850 प्राइस क्लोज है और एसजी लेवल 34,500 है और एसएसजी 34,650 है. तो हमारा लॉजिक क्या है कि मार्केट कहाँ भी ओपन होने तो कल इसमें हमें बाय करना है जब तक ये एसजी लेवल एसएसजी लेवल में डिफरेंस है तब तक, और प्राइस जो रेंज है एसजी लेवल के नजदीक आएगी, एसएसजी लेवल के नजदीक 34,650 के नजदीक आए तो हमें बाय करना है. ध्यान में आया आपके? So what do we have to buy? We have to buy C. We have to buy the call. We have to buy near SSG level. Now look at the system. Now tomorrow, if tomorrow open above 35,000, okay, then the gap will be more. So we have to wait. We have to wait till the price will come down or SSG level will go up. It will take nearly 10 to 15 candles. Then till that time we have to wait. Just look at the yesterday's candle chart. Dinesh bhai, yesterday's candle, this chart of Bank Nifty on our PPT. Sir, I'm showing the same one only, sir. The same one here, over here. No, this is another chart. It is a 15/170. It is Nifty chart. You want Nifty? 1 second, sir. One slide. Yeah, I want to Bank Nifty from our PPT. Look at this. Now look at this chart. What chart is showing that when it open gap up, went up very fast, and by that level, SG level was moving with very fast. So our trade, nothing trade was there. There is nothing trade within that time, and then super trend and that everyone is stable, and then first trade is about only 60 level at 215, I think 235, 215. After 215, there is a proper trade. आपके ध्यान में ये 2:15 के बाद ही ट्रेड हुआ है. जब पहले गैप अप ओपन हुआ ना तो उसमें एसजी लेवल रिट्रेसमेंट कहीं पर भी दिया नहीं मार्केट. वैसे रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा ना तो इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग. Okay. हाँ, तो इसमें कैसे है, जो आपने जो क्वेरी पूछा ना वो परफेक्ट है कि अगर गैप ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए. जो हमारे सवाल आए थे उसके अंदर भी थर्ड क्वार्टर में सवाल आए थे कि गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो हमने कब ट्रेड करना चाहिए. तो जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता और एसएसजी और एसजी लेवल के नजदीक नहीं आता तब तक हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए. मार्केट एक तो नीचे आता है या एसजी लेवल एसएसजी लेवल ऊपर चले जाते हैं,
जब मार्केट एकदम नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन होने के बाद मार्केट एक तो रिट्रेसमेंट लेता है। चार जो फ्राइडे के दिन हुआ था ऐसे, मार्केट नीचे ओपन हुआ था, फिर हमने बताया था कि यहाँ तक जाएगा, हम उसको पुट बाय करेंगे। तो हमको मालूम है कि एसजी लेवल कहाँ पर है, तो हमको वेट करना है। जैसे कभी कभी मार्केट में डिफरेंस होता है, तो मैं सुबह सुबह पहले मार्केट शुरू होने के पहले इंट्राडे लेवल डालता हूँ, तो लोगों को ध्यान में आ जाता है कि हमको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर शॉर्ट करना है। तो मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो एसजी लेवल हमको परफेक्ट टाइम देता है कि वी हैव टू वेट फॉर द ट्रेड, वी हैव टू वेट फॉर द बुकिंग द प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है कि 12 रुपए में कॉल लिया हमने या पुट लिया, उसके 14 या 17 रुपए हो गए, तो हम एग्जिट हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि 10-12 रुपए 2-3 रुपए प्रॉफिट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हमारा एसजी लेवल क्या बताता है कि अभी तो ये तेजी स्टार्ट हुई है, 7 के ऊपर गया आरएस है, अभी तो इसमें डिफरेंस चालू हुआ है, तो उसके बाद जो मूवमेंट आएगा वो बढ़िया मूवमेंट आएगा। Play Nightingale sound. Sorry, I don't Alexa. know that. Play Coil sound. दिनेश, Sorry, दिनेश, I don't know. Yes, sir. Yes, दिनेश, sir. Yes, sir. can we start PPT from the start or make that question one by one? You can ask me questions. You want First to line. you want to see the PPT? Yeah, from first we have to start now. Live question is finished, I think. सर उसी क्वेश्चन में चीज ऐड करनी है मुझे। हाँ बोलिए अगर सर। हेलो हाँ, आपकी आवाज, हाँ बोलिए। सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि अगर वो एसएसजी लेवल पे आएगा कल, तो हमें तब उसको बाय करना है। हाँ। अगर वो हाँ जी। कैंडल 5 मिनट्स की एसएसजी और एसजी हाँ जी। दोनों के नीचे जाए, तो पुट कब बाय करेंगे, वो उसका सिनेरियो क्या रहेगा? हाँ, पुट बाय करने के लिए आपको क्या करना है कि मार्केट को पहले सपोर्ट लेवल ब्रेक करके रेजिस्टेंस लेवल दिखाना पड़ेगा, मतलब सुपर ट्रेंड ब्रेक करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एसजी लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए कंटिन्यूअस। फिर बाद में एसजी लेवल और एसजी लेवल इसमें क्रॉस ओवर होना चाहिए, तो एसजी लेवल एसजी लेवल एसजी के नीचे आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या बताया आपको, 1 मिनट, अभी जो एसजी लेवल है अभी, मतलब कि सर एसएसजी एसजी के नीचे आ जाएगा, क्रॉस एक ये होगा, प्लस प्राइस सपोर्ट भी ब्रेक कर देगा। हाँ जी, तो वो होने के बाद है ना, इतना सब, हाँ, तो इतना होने के बाद आपको आरएसआई भी 40 के नीचे चले जाएगा सर। और आज आरएसआई 40 के नीचे चले गए तो आपको पुट बाय करना है या शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट का स्टॉप लॉस क्या रहेगा कि जैसे कैंडल कोई एसजी लेवल के ऊपर बंद होती है तो आपको एग्जिट होना है। ओके आरएसआई एक तरह का कंफर्मेशन रहेगा कि 40 के नीचे है तो हम आरएसआई कंफर्मेशन करता है एसजी लेवल और एसजी लेवल क्रॉस ओवर हुआ ना, तो आरएसआई हमें कंफर्मेशन देता है, दैट इज हेल्पिंग अस, नॉट सपोर्टिंग, हेल्पिंग अस दैट गो फॉरवर्ड। ओके, एसजी 40 के लेवल नीचे वैल्यू देखना है। हाँ जी, 40 के नीचे शॉर्ट करना है। देखो एसजी लेवल ये अपना प्रॉपर लॉजिक है, एसजी लेवल उसको सपोर्ट करता है एसजी लेवल। सपोर्ट कैसे करता है, एसजी लेवल के ऊपर अगर एसजी है तो मार्केट में तेजी है, एसजी के नीचे अगर एसजी के नीचे अगर एसजी लेवल है तो मार्केट में मंदी है। दिस इज द मेन लॉजिक आवर। देन बाय हेल्प वी आर गेटिंग आरएसआई 60 के ऊपर चला गया, एसजी ऊपर है तो मार्केट में तेजी है, आरएसआई 40 के नीचे है, एसजी नीचे है तो मार्केट में मंदी है। और सपोर्ट एंड ये जनरली हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत कम होता है ये, क्योंकि हमारा जो चार्ट ट्रेडिंग है ना, वो मार्केट में अगर कोई न्यूज भी रहेगी ना तो पहले आ जाती है कि समथिंग इज हैपनिंग इन द मार्केट। वो आवरली चार्ट की वजह से ध्यान में आ जाता है कि जैसे मान लो अभी दिनेश भाई को एक 100 करोड़ का टाटा स्टील बेचना है, तो 100 करोड़ का टाटा स्टील वो इमीडिएट तो बेच नहीं सकते ना, उनको 4-5 घंटे लगेंगे। तो 5-1 घंटे में अगर वो बार बार बेच रहे हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाता है आवरली चार्ट के अंदर कि समथिंग इज हैपनिंग इन द मार्केट। सर वन क्वेश्चन विनोद सर इसके अंदर अपन को सर मेनली अपना लॉजिक यही रहेगा कि एसएसजी नीचे रहेगा, एसजी से एसएसजी नीचे रहेगा और 40 से नीचे है तो अपन को पुट बाय करना है, और एसएसजी जो कि एसजी से ऊपर रहेगा और अबव 60 से ऊपर आरएसआई है तो अपन को कॉल बाय करना है। परफेक्ट
परफेक्ट, ये एकदम बढ़िया सिस्टम है। और इसके अंदर आपका टाइम फ्रेम क्या है, देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इंट्राडे के लिए यूज करना है, और अगर आप 60 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो दैट इज फॉर पोजिशनल 4 से 5 दिन के लिए। अच्छा, और सेकेंडरी सर ये एसजी लेवल और एसएसजी लेवल तो आप हमको जैसे ट्वीट करके बता ही देंगे कि ये अपना एसजी लेवल है और ये एसएसजी लेवल, ये तो आप बता ही देंगे अपन को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बस उसको और अपन को उसमें ध्यान में सिर्फ रखना एजी है। लेवल, सिर्फ मैं एजी लेवल और एसएजी लेवल नहीं बताता हूँ, बाकी और चीजें भी मैं उसके ऐड करता हूँ कि अभी आरएसआई क्या है, ट्रेंड क्या हो सकता है, इसका लेवल क्या हो सकता है। मैं कोशिश, देखो मैं जो ट्रेड करता हूँ उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप लोगों ने सीखना है कि एसएसजी लेवल क्या है, एजी लेवल क्या है। अगर आप खुद के ट्रेड खुद निकाल सकते हो तो ये मेरे को अच्छे अच्छे ट्रेडर बनने चाहिए। कॉपी पेस्ट करके क्या हो जाता है कि अगर मान लो आज मेरे नसीब में पैसा नहीं है, मेरा लॉस होने वाला है, और मैंने कोई ट्रेड किया तो मेरे लॉस के साथ सब लोग लॉस में चले जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ जी दैट मैं ट्रेड करने की वजह आप मेरे को पूछो कि इसका एजी लेवल क्या है, एसजी लेवल क्या है, तो आप खुद डिफाइन करो। मैंने अगर समझो पुट बाय किया तो आप पुट बाय मत करो, अगर आपको वहाँ तेजी दिख रही है तो आप तेजी करो, जरूर नहीं कि मेरा कॉपी पेस्ट करना है। जी क्योंकि जी थर्सडे को जो हुआ ना उसने मेरे को पूरा हिला दिया सर। सब्जेक्ट को मैंने पुट लेके रखे थे, मेरे को दिनेश भाई टोल्ड मी दैट वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम द कॉल। मैंने कॉल लेके रखे थे, दिनेश भाई टोल्ड मी दैट वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम द कॉल। now the SCG level and SG level of hourly chart is coming near and near. Every candle is closing below the super SG level, so we have to exit from the call, we have to buy put. But I ignored his message and I am holding the call and all money goes to zero. But ओह, instead of that, if अगर हमने उस दिन if we buy put by the hint of Mr. Dinesh, then we will be profit more than 500%. Dinesh send me out put trade some. Then what was our planning for the Thursday? Thursday का प्लानिंग क्या था हमारा कि मार्केट ऐसे ऐसे बढ़ेगा, वो सारी चीजें ना फ्राइडे को प्रॉपरली हो गई। तब मुझे काफी दुख हुआ कि मार्केट ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों। तब मेरे ध्यान में आया कि मेरे नसीब में नहीं था लेकिन बाकी के लोगों के नसीब में था ये चीज। तो लोगों ने अभी अपने ट्रेड अपने आप सीखने चाहिए एचएससी लेवल एचजी के लिए, इसके अर्जेंट कॉल रखा है। नहीं तो आज का मीटिंग जो था, टुडेज मीटिंग वाज फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हाउ टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हाउ टू सर्च द स्ट्राइक प्राइस। पर उसके पहले हमें ये जानना था कि सब लोगों ने एचजी लेवल क्या है, एससीजी लेवल क्या है, उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके स्टॉप लॉस क्या है, उसमें अगर गैप डाउन है तो देन व्हाट कैसे ट्रेड करना है। ओके, अभी जो एक चीज क्वेश्चन ले और। सकते हैं ट्विटर के, बोले ना सर। हाँ सर, मैं एक चीज ये पूछ रहा था सर, कॉल पुट में बाय ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर अपन को फ्यूचर में ये करना चाहिए? कि कॉल पुट बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब एक तरह का वो मतलब एक वो सट्टा है कि मतलब कोई जीरो भी हो सकता है, मतलब ना अपना ना मनी जो कैपिटल। नहीं, तो कॉल पुट का हमारा जो लॉजिक है ना सर, वो सबसे बेहतर है। उसका स्लाइड जो हमारा रेडी है, लेकिन वो नेक्स्ट हफ्ते में हम करेंगे संडे को। हाउ टू कॉल पुट में हम ट्रेड क्यों करते हैं, फ्यूचर में क्यों नहीं करना चाहिए, और सारी चीज लॉजिक का ट्रेडिंग कैसे होना चाहिए, तो सारा ऑप्शन का हम नेक्स्ट वीक करेंगे। लेकिन जिस हफ्ते है ना, ये हफ्ते हमको ये एसएससी लेवल एसजी लेवल का करना है। अभी टाइम भी काफी हो चुका है, तो वो क्वेश्चंस लेने जरूर आने चाहिए। एक चीज और रिक्वेस्ट सर, अगर आप कॉल पुट के अगर प्रिडिक्शन भी देते रहे मुझे, जैसे मतलब ट्वीट करते रहे कि अब इतने पे, तो वो भी ठीक रहता है। थोड़ा सा एक सपोर्ट, मेंटली थोड़ा नहीं आप, सपोर्ट मिल जाता है। हाँ नहीं सर, आप पूछे ना। देखो क्या होता है, मैं हर एक चीज का करने के वजह भी, जैसे आपका जो लेवल मैं लिस्ट ट्वीट करता हूँ कि ट्विटर की लिस्ट कौन सी है, इसके ऑप्शंस की लिस्ट कौन सी है, तो आपने अगर पूछ दिया कि टाटा स्टील का क्या टारगेट हो सकता है या फिर कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ। और आपके लिए नहीं हो वो, अगर आप मुझे पूछते हैं ना, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर अदर्स आल्सो। जी जी बिल्कुल। Okay, Vinod, क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? प्लीज आप उस भारतीय एयरटेल के चार्ट पे आएंगे एक बार? क्या चीज? भारतीय एयरटेल के चार्ट पे आप एक बार आएंगे प्लीज? भारतीय एयरटेल का पोजिशनल चार्ट है वो, दिनेश भाई। Yes, sir. Yes, sir. हेलो दिनेश भाई, टेक दैट भारतीय एयरटेल चार्ट फ्रॉम द ट्विटर। या अभी आपने सॉरी Yeah, please go ahead. यस यस जैसे भी यस, आपका भारतीय एयरटेल चार्ट। एसजी और एसएसजी
यस, यहाँ पे आपका एसजी और एसएसजी क्या प्राइस है एक बार? यस, 529 533 एसजी लेवल है SSG, और एसएसजी 529 है। 529 एंड हाँ जी 533 SG, राइट? हाँ जी So you mean to say it has to close at the 533 जैसे कि वो तेजी में आ जाए, राइट? हाँ, वो क्लोज होना नहीं जरूरी सर, उसके ऊपर क्लोज होने के बाद ये ना क्रॉस ओवर होना जरूरी है। क्रॉस ओवर यानी कैसे है कि एसएसजी लेवल का प्राइस है ना 534 535 ऐसा कुछ आना चाहिए, उसका जो काउंटिंग है ना वो चेंज होना चाहिए, उसके ऊपर आना चाहिए। ओके, देखो एक कैंडल तो है ना अभी उसके आपका ऊपर बंद हो आरएसआई क्या जाएगा। था? एक प्रेजेंट आरएसआई अभी क्या है आपका आरएसआई इसका क्लोजिंग अभी? में आया था 45 है 45 45.6 है, राइट? 40 It has to go above 60. हाँ 45 या दैट वो आरएसआई 60 के ऊपर जाना चाहिए। और आपका एक कैंडल तो जैसे क्रॉसओवर 533 ऊपर के होगा, ऊपर बंद। हाँ जी राइट? हाँ जी, हाँ जी बोलिए सर। 533 के ऊपर क्लोज होने के बाद आपका आरएसआई बढ़ेगा कि नीचे 60 पर आ जाएगा वो? सर 533 के ऊपर क्लोज होना जरूरी नहीं है हमको। हमको क्या जरूरी है, एसएचजी लेवल और एचजी लेवल क्रॉस ओवर होना जरूरी है। अगर 5 के 5 कैंडल और कल का मतलब पूरा दिन मंडे का पूरा दिन और 530 के आसपास ही बंद हुआ ना, तो ये दोनों लेवल नजदीक आ जाएगी। दोनों लेवल नजदीक आने के बाद क्या हो जाएगा कि मंगलवार को एक कैंडल की 532 बंद हो गई ना, तो अपना क्रॉस ओवर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और तब तक आरएसआई भी ऊपर चला जाएगा। आरएसआई ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि नीचे से जो आरएसआई ऊपर लिया ना, तो एक कैंडल ने पूरा ऊपर ले लिया, लेकिन थोड़ी थोड़ी कैंडल ऊपर जाएगी ना। ओके, ओवरऑल जैसे आपने कहा इट्स अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि ट्रेडिंग अगर इंट्राडे का है तो 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से हमें फॉलो करना चाहिए, राइट? और सेकेंडली अगर 4 to 5 डेज का अगर हमारा ये है तो उसके लिए आवरली चार्ट मैं पहले से मैं वही कैंडल्स फॉलो करता हूँ, आवरली चार्ट। और अगर इसके बाद भी अगर मैं देख रहा हूँ 10th मई इट वाज 578 हाई और क्लोज हुआ था उसका 573। उसके बाद जो 10th मई के बाद वो कंटिन्यू नीचे आता गया है। उसका लो था लास्ट कल का फ्राइडे का 18 रुपीज 50 पैसा अपन 18 रुपीज 50 पैसा लो, ओपन और लो सेम था उसका, एंड इट हैज गॉन अप टू 534 हाई, बराबर? आई वुड जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ये जो 578 हाई था उस दिन का, उसके बाद जो ये नीचे आते गया है कंटिन्यू 3 4 5 6 7 8 कैंडल है कुर्सी है, 8 कैंडल जो कंटिन्यू रेड में है, इज दैट योर कॉल वाज ऑलवेज? मतलब आपका जो टेक्निकली एनालिसिस था वो आप शॉर्ट के लिए कह रहे थे आपका एसजी लेवल एसएसजी का लेवल ऊपर था? देखो कंटिन्यू हाँ मैं बता ना ये अभी का है। अभी आपको बताता हूँ 518 के बाद वो रिटर्न नहीं 518 के बाद वो रिवर्सल देगा या ऊपर आएगा, उसके बाद वो 570 वापस क्रॉस हो जाएगा। इसके पीछे क्या टूल है, क्या लॉजिक है? सुनो सर, अभी 518 उसने लो लगाया है, अभी 533 हुआ है, तो कोई भी मार्केट में ऐसा बंदा नहीं जो टॉप और बॉटम पकड़ेगा। फर्स्ट थिंग, अभी जैसे 518 नहीं 533 हमारा ब्रेकडाउन बेसिकली भारतीय, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने ये आपसे कुछ पूछा क्योंकि मैंने एक सिंगल लॉट एफएन में 1851 का क्वांटिटी का एक लॉट 530 बराबर मैंने कल बाय किया हुआ है, बिकॉज आई वाज गेसिंग कि 518 इसका अभी जो ओपन लो सेम दिखा रहा है एंड इट इज गेटिंग रिवर्सल फ्रॉम हियर, इट हैज टू गो बैक टू 550 548 वन लेवल 550, सेकंड विल बी 568 एंड 574। ये मैंने अपने हिसाब से एनालाइज करके देख रहा था मैं। सुनो ना सर, आपको पर्सनल एनालिसिस के लिए नहीं बैठे हैं, हमको एसजी लेवल का लॉजिक बताना है। व्हाट इज एसजी लेवल, व्हाट इज एसजी लेवल। तो एसजी लेवल के हिसाब से अभी इसको तेज आना बाकी है, मंदी अभी नहीं है इसके अंदर। मंदी क्यों नहीं है, क्योंकि इसने सुपर ट्रेंड ब्रेक किया है, तो मंदी खत्म हो गई इसकी। और इसके बाद जो तेजी आने वाली है उसके लिए एसजी और एसजी क्रॉस होना जरूरी है। और इसके पहले जो आपने बताया ना ऊपर से नीचे आया, तो मैंने वो ट्वीट में लिखा है कि कितने तारीख को नीचे बंद हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, उसके अगले दिन जो मार्केट नीचे आया, तो उसका जो 5 दिन के अंदर 40 रुपए भाव नीचे आया है, तो 8 रुपए का जो पुट था वो 30 रुपीज हुआ है। तो ये सारी चीजें ना, देखो टॉप हमको मिलेगा नहीं, बॉटम हमको मिलेगा नहीं, प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये जो मिलते हैं उसके ऊपर हमारे ट्रेड होते हैं। तो एसजी लेवल के बारे में पूछा, आप जो भी पूछना है, जो आपको पर्सनल पूछना है ना, तो आप फिर कर सकते सर, टाइम बहुत है हमारे पास। सर एक बैंक निफ्टी में जो है अभी आरएसआई अबाउट 71 शो हो रहा है सर, तो कल का प्रेडिक्शन यही रहेगा? कल शायद जैसे ओवरबॉट
सर कल का हम नहीं सोचते, हमको एसजी लेवल एसएसजी के बारे में सोचना है सर। कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। अगर मार्केट ऊपर भी खुला ना तो हमको जब तक एसजी लेवल के नीचे नजदीक नहीं आता तब तक ट्रेड करना नहीं है, और नीचे खुला अच्छा। तो एसएसजी लेवल के नजदीक आया तो हमको बाय करना है। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है ना सर ये है कि आपको अभी एसएसजी लेवल मालूम है कितना है बैंक निफ्टी का, इंट्राडे का? एसएसजी लेवल तो अभी ये 34,600 650 है उसके करेक्ट। 34,650 अभी मार्केट अगर 200, हाँ 34,650 देखो अभी लॉजिक देखो, अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे आता है खुलता है तो आपको मालूम है ना कहाँ पर रुकेगा मार्केट, तो आप यहाँ पर तुरंत कॉल बाय करते हो। अच्छा आपने कितने बार देखा रहेगा ना, मैं कॉन्ट्रा ट्रेड बोलता हूँ तो कॉन्ट्रा ट्रेड ऐसे सक्सेस होता है वो। अच्छा कॉन्ट्रा ट्रेड वो वापस वहीं पे आके वापस वहीं पे बाय कर लो। हाँ सर उस फॉल को एंजॉय नहीं कर सकते हम? हाँ जी सर एक वो जो एक्सक्यूज मी सर, फॉल होगा व्हाट्सएप एसएसजी लेवल सर, तक। एक्सक्यूज मी सर, सर एक व्हाट्सएप ग्रुप जी बोलिए बनाओ, सर। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ so that we can get clear analysis and chart reading. We can go बिल्कुल through सर, in ये मैं क्या बोल WhatsApp रहा हूँ, chart. ये बिल्कुल सही रहेगा सर। we can WhatsApp probably group do a ठीक रहेगा। live we can do a live G meet and do the trading. Very few select people can maybe whatever can join the live Yes, G meet. so that is our next so that we planning to can trade daily. सर हमारा वो प्लानिंग है आगे का कि टेलीग्राम ग्रुप बनाना है, लेकिन लोगों को Yes, पहले sir. एसजी लेवल एसजी लेवल समझने तो आना चाहिए ना। लोगों को एसजी मालूम नहीं, हाँ। एसजी लेवल मालूम नहीं है। अभी हमको तो आ गया when सर, you तो will- हमारे लिए सर तो SG टेलीग्राम level और SSG level, सर SG level और SSG level you can share it on your WhatsApp group so that we can understand by reading it. Sir, that is limitation, sir. There we are on open platform. Twitter is totally open platform. हाँ. Now you have to हाँ. ask if अगर आप कोई एसएससी लेवल पूछते हैं कि हाँ. रिलायंस का एसएसजी पोजिशनल एसएसजी लेवल क्या है, मैं आपको जवाब देता हूँ तो हजारों लोग Yes, उसको yes. देखते हैं सर। ग्रुप के अंदर से हाँ, हमको हाँ. क्या बनना है, मैं ये जो कर रहा हूँ ना, फ्री में कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है कि मेरे को हाँ. इंडिया में हजारों हाँ. ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने हैं। मेरे को पैसे से पैसा नहीं Yes, कमाने sir. का, मेरे Yes, को sir. एक No छोटा doubt. ग्रुप नहीं बनाना का। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, इसके हाँ. अंदर अभी हमारे पास 45 लोग है ना, तो 45 के 450 हाँ. लोग चाहिए। जब बड़ा ग्रुप बनेगा ना तो आप खुद हाँ. ग्रुप बनाओगे सर। आप Yes, खुद sir. ग्रुप आगे का फ्यूचर में बता, आगे का मैं फ्यूचर बताता हूँ इसका क्या होने वाला है कि जैसे हाँ. आप पर्सनल एक ग्रुप बनाओगे, उसके अंदर 40-50 लोगों का टीम रहेगा आपका, और आप मेरे को Yes. एजी लेवल पूछोगे, मैं आपको एजी लेवल बताऊंगा तो आप उसको स्प्रेड करने वाले हैं। Yes, yes, तो yes, yes, मार्केट में yes, ट्रेड yes. करने के लिए देखो, मार्केट में ट्रेड करने के लिए अच्छा. सिंपल हाँ. फंडा है, सिंपल चीज है, सिंपल चीज बताता हाँ. हूँ मैं आपको। देखो Okay, आपको okay, अगर okay. इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ना तो सिर्फ 4-5 स्क्रिप्ट हाँ. देखो। पूरा हाँ. पूरा बाजार अपना नहीं है, 4-5 स्क्रिप्ट देखेंगे ना तो उसके अंदर परफेक्ट मजा आएगा। और पोजिशनल ट्रेड करने Correct, के sir. लिए जो स्टॉक है ना, तो 10-12 स्टॉक अपने हाँ. सिलेक्ट करके रखो, 12 स्टॉक सिलेक्ट हाँ. करके रखो जिसके अंदर वो ऑप्शन वॉल्यूम सबसे 988 ज्यादा है। हाँ यही नंबर है 9881302241। तो उसमें क्या Okay. हो जाता है कि जैसे आपके लिस्ट में ना टाटा स्टील है, मारुति मोटर है, Reliance है. Reliance है. आरबीएल बैंक रिलायंस है, मतलब ये सिलेक्टेड 12-15 स्टॉक है ना सर, इसको ट्रैक करते जाओ ना, बाकी की देखने की जरूरत नहीं Yes, है। yes, फिर yes, उसके yes, लेवल yes. सब मैं Yes, sir. Yes, exactly. Guys, हाँ तो देखो मैं एक सिंपल, हाँ दिनेश अगेन please go ahead, sir. Please go we ahead. have to take that Twitter questions very fast. Yes, sir. Okay. I will ask some. Sir, what happens if both SSG and SSG, right? If both are same. SG and SSG both are same. That time RSI may be 50 or 48 to 52. That time within RSI is 60 to 40 or 40 to 60. That is no trade zone. And that time always SSG and SSG nearly mixed. So when SG and SSG is mixed, then that is no trade zone. Look at yesterday's Nifty came down, Bank Nifty came down, and that is moving around something. Then that was a no trade zone. Yes, now this is the start. When super trend breakdown, market came down, and that time that was a no trade zone. RSI not going below 40 and not going above 60 to 40, that is no trade zone. Again market went up, super trend break,
resistance level broken, and then again market came down. That is also no trade zone because not crossing the 60 RSI and moving not going below 40 because there is no subject. मतलब नीचे जाने का सवाल ही नहीं है क्योंकि सुपर टेन ब्रेक किया इसने. अभी यहाँ से देखो जब 60 RSI क्रॉस किया है, when the Nifty crossed the 60 RSI, look at the move. तो ये मोमेंट कितनी मस्त हुआ है इसका. और वही आप फॉल का देखोगे ना आप प्रीवियस डे, उसके अंदर भी वैसे हुआ है. सुपर टेन ब्रेक किया है और उसके बाद उसने 40 क्रॉस किया है. पहले भी एक बार 40 क्रॉस किया था उसने, नीचे आया था RSI लास्ट डेज मतलब थर्सडे का, लेकिन उसने सुपर ने ब्रेक नहीं किया था वहाँ पर. और जो RSI है ना ये सॉरी SG और SSG पूरा दिन भर मिक्स था उसके अंदर, पूरा दिन भर मिक्स था. मतलब फुल डे इट वाज मिक्स. yesterday on Thursday when Dinesh told me that hourly chart is showing weakness, we have to exit from the call. Only because of this mixedness and the super trend, I was holding that call. Okay, there is a. Yeah, okay, sir. All right, fine, sir. Sir, one question from my side. In this Bank Nifty tweet, there is no RSI mentioned. So Bank Nifty में RSI नहीं होता क्या? Bank Nifty में RSI है ना? RSI सब जगह होता है सर, जिसमें चार्ट बनता है उसका RSI होता है. सामने ही है RSI. RSI सब में होता है, जिसका चार्ट बनता है ना, आप चार्ट बना लो उसका RSI होता है. जैसे कोविड का भी है ना, कोविड का भी RSI बनता है ना उसके अंदर. कैसे ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, अभी बीच में ऊपर गया था 4.5 के आगे, तो आप तो 2.5 लाख आ गया. Okay, sir, Okay, sir. one question, sir. Hello. Please, sir. Okay, so forgive me, sir, if it is a wrong question, but I would like to know, your future plan with this SG and SSG level. कि आप इसको कोई indicator बनाना चाहते हो या फिर you are planning this as a paid service kind of a thing. What is the future around this SG and SSG? Very nice question. You are asking my vision, I think. So Yeah, my vision yeah. is that मेरा एक सोच क्या है, मेरा एक लिमिटेड रखना है. ये 44 लोग है तो बाहर बताना भी नहीं किसी को, बताए तो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये दिस इज फॉर वेरी लिमिटेड. तो क्रिप्टो करेंसी का प्लानिंग है मेरा. 1 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर काम चल रहा है हमारा. एडवर्टाइजमेंट कंपनी ऑन द ब्लॉकचेन, और इसका खुद का टोकन रहेगा, क्रिप्टो करेंसी रहेगा इसका. ठीक है. हेलो हेलो. Yes, sir. Please Yes, go sir. ahead. Yes. या अभी वो जो क्रिप्टो करेंसी है तो मुझे क्या करना है उसका, ये शेयर मार्केट में उससे क्या रिलेशन है. तो यहाँ पर से मुझे जो थाउजेंड्स ट्रेडर्स है प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हैं, एसजी लॉजिक समझ रहे हैं, प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रेडर्स मैं चूज कर रहा हूँ, उनकी लिस्ट बना रहा हूँ. और आगे जाके मेरे को जब इंटरनेशनल लेवल में हमारा जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करेगा, दैट टाइम दे विल बी इन प्रायोरिटी सिस्टम. एंड उसमें कैसे अलॉटमेंट करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है. आज इंडिया में देखो बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक को घुमाना है ना यहाँ वहाँ, तो काफी लीगल अटैचमेंट है, काफी दिक्कत आती है. लेकिन आज क्रिप्टो करेंसी ओपन टू ऑल है, वहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब टोटली फ्री लाइक द स्काई. बट सर ये क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया में मतलब ये तो वैलिड तो है नहीं, इसको आरबीआई की परमिशन है नहीं, और मतलब इंडिया में क्या ये सक्सेस मतलब कहते हैं कि मतलब ये आपको मैं आपको क्या बताया मैंने, ओपन टू स्काई है. मतलब इंडिया में जरूर नहीं ना, हम कहीं पर भी बाहर से कर सकते हैं ना. इंडिया में देखो अभी चाइना बोल रहे मत करो, कल इंडिया पिछले चाइना ने 4 साल पहले बोला था नहीं करना है. ये सब चीजें ना सब आगे का जमाना क्रिप्टो करेंसी का है, आगे का जमाना है ना. आप देखोगे ना 2 साल का 3 साल का पूरा क्रिप्टो करेंसी चलने वाला है. तो अलग बात है, लेकिन मेरा जो विजन है ना, मेरा विजन ये है कि मेरे को प्रॉपर ट्रेडर चाहिए, दे कैन अंडरस्टैंड दी एसजी लेवल लॉजिक एंड माय थिंकिंग. मेरा अंडरस्टैंड, मेरा जो सोच है वो उसको समझ पाए. तो अगर मैं इसको पेड सर्विस करूँ ना तो बहुत पैसा देने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरा ट्रेडर के अंदर पैसा नहीं है, वो दैट इज इनफ. तो फर्स्ट विजन मेरा ये है कि एसजी लेवल इससे भी बेटर चीज अपने पास है जो हम आगे दे सकते हैं. All right, sorry, sir. Actually, we have only last 10 minutes left. YouTube पर. Yeah. So probably बिटकॉइन का आपने ट्वीट किया था, तो बिटकॉइन आप कह रहे हैं कि 32,500 आ जाएगा, उसका RSI ठीक है. सुशील, please don't mistake. वो बाद में बात करेंगे सुशील सर, हम बाद में बात करेंगे ना. ऐसे ओके. हाँ, क्योंकि वो जो आप
आपको जो भी पूछना ट्विटर पर पूछो ना सर प्लीज। Yeah, I mean, anything with crypto, let us take it to Twitter. Okay, our main objective is about our index. All right. I'll just ask one. If anyone has any question, probably I'll take one more question. If not, then I will open. I will ask the questions which some people has asked me in Twitter. सर एक एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे ट्विटर पे जैसे आप सर जैसे एसजी और एसएसजी लेवल को देखते हुए एक अच्छा जिसमें वॉल्यूम हो, तो वो कॉल और पुट का भी अगर टिप्स अगर वहाँ पोस्ट करते रहें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके इसमें थोड़ा बहुत। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पूछो ना मेरे को क्या पूछना है, मैं ढूंढ के नहीं बताऊंगा, आपने ढूंढना है, आपने सब करना है, मैं सिर्फ एसजी लेवल बताऊंगा, एसएसजी लेवल अच्छा बताऊंगा। अच्छा वो हाँ जी वो कहा गया है ना, युद्ध तुमको करना है, मैं मार्गदर्शन करूंगा, तो आप युद्ध करो ना सर। मतलब आप ढूंढो उसको, तो आपको कौन सा स्क्रिप्ट अच्छा चाहिए, कैसे चाहिए, क्या लॉजिक, हाँ तो आप ढूंढो, मैं मार्गदर्शन है ना सर। जी जी सर एक और सजेशन, जो आप एसजी लेवल एंड एसएसजी डालते हो, कैन वी मेक दैट काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ अ फॉर्मेट, लाइक यू नो इंटरवल दिया, एसजी लेवल दिया, एसएसजी लेवल दिया, एंड यू नो probably that's it what we need, है ना, कि बाकी तो लोगों को समझना है, right? Whoever understands the logic, they'll just अजय get to it from SG and SSG, right? अजय अजय, तो देखो आपने जो बताया ना वो बात सही है, लेकिन आज भी आरएसआई लोगों को मालूम नहीं है, आज भी सुपरटेन मालूम नहीं है, स्टोकेस्टिक मालूम नहीं है, मैगडी मालूम नहीं है, तो इतने इंडिकेटर है ना, बाद में उसको इंडिकेटर पैटर्न बनते हैं वो मालूम नहीं है। तो मैंने इतना सिंप्लीफाई किया है ना सर, इसको मार्केट को इतना सिंप्लीफाई किया है कि अगर आप 10 साल के बच्चों को बिठाएंगे मेरे सामने और उसको मैं बताऊंगा ना, तो ही विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। मैं इतना हाँ सर, सिंपल किया है ना आपको। हाँ एक्चुअली हाँ सर आपको है ना, if you are getting a fresh minded person जिसको कोई हाँ जानकारी नहीं है about the market, and if you are just telling him, you know, this is RSI, this is this, and you have to work like this, definitely he is going to win. अभी क्या हुआ है, the सर people around this, they came from different background, right? उसने MACD या सीखा, या किसी ने या कुछ और सीखा, so that's the reason I think आ इतने जाइए। सारी questions आ रहे हैं, right? Deepak, नहीं I इसके लिए मैं completely इसके agree with you. Deepak, if you don't mind, I mean, seeing the time constraint, right? Can you please Yeah, got send it, got it, I got it. a message in Yeah, Twitter? I will be in sure, touch with you. We will work on it. We will work on this. Okay. sure. We will take a call separately with Rajendra sir. Okay. Just drop me a number or send me a hi in Twitter, please. Sure, definitely. Yeah. Okay. All right. Then one more, Dinesh bhai, more thing is that if there is a necessary, we can take this type of Zoom meeting anytime or weekdays also, because not necessary to wait for Sunday or Saturday. If we have time, we can take it at 9 p.m. also anytime. So don't make hurry to ask all questions now. Now to Dinesh. Dinesh bhai. Yeah, sir. Okay, let us assume, considering, right, you know, these days markets are too volatile, like we are seeing gap up, big gap down Yeah. every day. Okay, what can we do if the index Yes. or any stock, right, if we are seeing a big gap up or gap down? Okay, now Yeah. I'll put it in another way that, you know, now market is bullish as per SG level logic, RSI, everything, right? It is clear indication of bull market. Let us assume that tomorrow, if Yeah. it is gap down by 300 points, 400 points, okay, what can we do? Yeah. Or Suppose even there is gap a up by now there is 400 a points also. no. Now what Dinesh asked me that if Nifty open 300 point gap down. So okay, assume that tomorrow it opened by 34,550. So it is opening below the SHG level. Okay, and then after 10 minutes, it first 5-minute candle close below the SG level. If any candle close below the SG level, that means this bullishness, intraday bullishness is finished. Okay, Dinesh. Yes, sir. Okay. Okay. Then the next candle or that candle should have to break support level. If support level is broken, then we have to wait SHG and SG crossover and RSI to go below 40. Okay. But that will not happen this very fast. It will take 4 to 5 candles. Okay. That all candles will close. Below within SG and SHG. That is called sideways market. Okay. That is called time pass. So after 1 hour, tomorrow if open gap down, after 1 hour, we will get proper breakdown. Okay. After proper breakdown,
RSI will be below 40 and SHG will be below AG level. Okay, sir. So that is proper breakdown. And that time we can buy put and other things. But before that, when market open and within 940 or before crossing anything, I have post about the contra trade. Why I have used this contra trade? Because I know that market will go come down and this something is happening and after some time it will go below. So that is contra trade based on this SG and SCG level movement. Okay. Not on my mindset. Okay. So this is the logic. And if open gap up, suppose tomorrow open gap of 500 point or 300 point, then we have not to rush to buy a call immediately because market that SG level or SCG level, we have to we need minimum gap. Minimum gap means price action, price may be at SCG level. Okay. When Monday market open gap up, then next day Monday Tuesday also gap up. Then from Tuesday I was saying that market have to take correction to the SCG level. Correct. Then correct. we will buy the call. Yes. Exactly, we buy the call. We bought the call, but on Thursday something happened and everything becomes zero. Understood, sir. Sir, even here also, if you see my screen, the support rate is actually above SG level. As per logic, it shouldn't be above SG level support also, right? In this case, what can we do? In this case, market will take time to stable all levels as per our formula. So it will take more time to stable. Means we have to wait for the proper trade. Okay, sir. In So, hurry, because SG support level is above SG level, means that support level showing that safeguard level keep away. I'm going up. So it is very strong market. Okay. So, sir, I have only 2 minutes. Okay, let us just I will ask one more question. So can we trade usually in pre-opening, sir? When there is No. Never. I never trade in pre-opening. Pre-opening means you are judging the market before opening, and the pre-opening rates are totally manipulated. Totally manipulated. See the pre-opening rate after 15 minutes, you will get totally opposite side. Totally opposite. See the Aurobindo Pharma price. It is showing up. After 15 minutes, it is coming down. Never trade pre-opening. I never trade pre-opening because we start trading also after 20 minutes. Okay. Another. I think we are going to close in 1 minute, sir. I would just like to thank everyone for joining. Like what sir said, right? We will also see probably right end of the day. If you all have time, you can have an immediate Zoom session. We will see. We will try to tweet, and even whoever has time, they can join. At the same time, anything related to WhatsApp or Telegram group, let us have some patience, guys. First, the idea is we need to very much understand how this SG logic works and everything. If not, the mindset for most of the people, right? Like even for me also in the beginning, also it will be like, I see the SG the levels, then I would just go for the trade. It shouldn't be there. First, let us form a small community, okay, where we will try to get ourselves know more about SG, like different hypothetical scenarios. Then from there, we will slowly take it up to next level. Thank you so much. Dinesh, bro, I have a suggestion. If not Zoom call early in the morning, what we can do is a Twitter space. Like there we have all the participants also. A Twitter space will be helpful. Yeah, that's fine. That is a good one also. We can do that. No worries. We can do everything by which we can get